Hello everyone, myself Rizwana Rathod. I am working as a nursing lecturer in Knowledge Institute of Nursing and I had completed my MSc Nursing in Mental Health Nursing. In Mental Health Nursing, today we will learn about the Unit 2, that is Principle and Concept of Mental Health Nursing. In Unit 2, we will first see the terminologies. There are different terminologies we can use, right? So we can see the terminologies used in the mental health nursing. So first one, mental health. It is a state of balance between the individual and surrounding world. Surrounding world means our हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है वो हम उसमें सारे एनवायरनमेंट इंक्लूड कर सकते हैं. फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, ऑल द एनवायरनमेंट आर इंक्लूडेड. सो एनवायरनमेंट के बीच और इंडिविजुअल के बीच बैलेंस होना जरूरी है, तभी हम मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं उसको. ए स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन वन सेल्फ एंड अदर्स. अदर मीन्स जो हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारे फ्रेंड्स है, स्पाउसेस मीन्स हस्बैंड एंड वाइफ, देन चिल्ड्रंस, उसके बीच हार्मनी होना जरूरी है. हमारे बीच और अदर्स के बीच हार्मनी होना जरूरी है, तभी हम उसको मेंटल हेल्थ बोल सकते हैं. देन को एग्जिस्टेंस बिटवीन द रियलिटीज ऑफ द सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर्स मीन्स देयर इज अ सिमिलरिटी होना जरूरी है हमारी रियलिटी के बीच और दूसरों की रियलिटी के बीच. सो समझ आया मेंटल हेल्थ क्या होता है. इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सराउंडिंग वर्ल्ड, a state of harmony between oneself and others, and coexistence between the realities of self and that of others, right? देन वी विल मूव ऑन टू द मेंटल इलनेस. मेंटल इलनेस में क्या होता है, तीन चीजों में चेंजेस आ जाते हैं, जैसे थिंकिंग, मूड मीन्स इमोशन और बिहेवियर. वो क्या कॉज करते हैं कि हमें सफरिंग टू द सेल्फ मीन्स पर्सनल डिस्ट्रेस कॉज करते हैं और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग means activities of daily living are also impaired. So mental illness is a clinically significant condition characterized by alteration in thinking, mood, behavior associated with personal distress and impaired functioning. Then we will see the definition of psychiatry. It is a branch of medicine that deals with the diagnosis, treatment and prevention of mental illness. वो मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जो किस चीजों में it can diagnose, treat and prevent the mental illness. Then what is psychiatric nursing? It is a specialized area, right? It is both art and science. Why we can call it as science? Because it applies the theories of human behavior. And why we can call it as art? Because we can use ourselves purposefully. So it is both art and science. And what in this condition it can use, it diagnose and treat the actual and potential mental health problems. So it is given by American Nurses Association 1994. What is psychiatric nursing? It is a specialized area of nursing practice employing theories of human behavior as it is a science and the purposeful use of self as it is an art in the diagnosis and treatment of human responses to actual or potential mental health problem. Then we will see the disorder of perception. Before we see the disorder of perception, we can uh, we must know what is perception. Perception is the meaningful organization of sensory data. Sensory data means you already know we have five senses, right? Touch, smell, sight, hearing, and uh, थिंकिंग, राइट. सो परसेप्शन इज द, हम उसको मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज करते हैं. जो सेंसरी डेटा होता है हमारा उसको हम मीनिंगफुली ऑर्गेनाइज करते हैं. देन व्हाट इज हाइपर एस्थेसिया? दैट इज हमारे जो सेंसेशन होते हैं वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं. जो सेंसेशन की इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. मीन्स जो आवाज़ थोड़ी भी हो तो हमें बहुत ज़्यादा लगने लगती है. देन कलर थोड़ा लाइट हो तो वो हमें बहुत ब्राइट दिखने लगता है, और थोड़ा सा भी पेन हो तो हमें बहुत अनटॉलरेबल होता है. मीन्स हम टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. पर ये चीज किस चीज में दिखने को मिलती है? दैट इज इंटेंस इमोशन एंड हाइपोकॉन्ड्रियकल पर्सनालिटीज. हाइपोकॉन्ड्रियकल पर्सनालिटीज मीन्स थोड़ा भी हमारी बॉडी पे कुछ भी होता है तो वो उसे बिग डिसीज कंडीशन में इंक्लूड कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा पिंपल हो गया तो वो हाइपोकॉन्ड्रियकल पर्सनालिटी वाले पीपल क्या परसीव करते हैं कि हमें कैंसर है. थोड़ा सा कफ हो गया है तो वो क्या परस्यू करते हैं कि हमें ट्यूबरक्यूलोसिस है, मीन्स टीबी है. थोड़ा इससे ज्यादा हमारे हार्ट रेट ज्यादा हो गए तो वो क्या परस्यू करते हैं कि हमें हार्ट अटैक आया है, राइट. सो इट इज इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ सेंसेशन. वो किस चीज में देखने को मिलता है? इंटेंस इमोशन एंड हाइपोकॉन्ड्रियकल पर्सनालिटीज. देन इल्यूजन. व्हाट इज इल्यूजन? कोई चीज है पर हम उसे मिस परस्यू कर रहे हैं, राइट. मिस परसेप्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल
स्टिमुलाई मीन्स कोई छाया है हमारी, तो हम उसे क्या मिस परसीव करते हैं कि कोई भूत है या कोई आत्मा है। देन कोई रस्सी पड़ी है तो हम उसे स्नेक परसीव करते हैं, वो चीज प्रेजेंट है पर हम उसे मिस परसीव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इल्यूजन। देन व्हाट इज हेल्यूजिनेशन? Illusion means in the presence of external stimuli we can misperceive, but hallucination is in the absence of real external stimuli. What is hallucination? Perception in the absence of real external stimuli. That is, we can perceive as a coming from the, but it is coming from the external mind, not within our mind. For example, hearing a voice of someone when actually nobody is speaking within the hearing distance. हमारे आसपास कोई बोल नहीं रहा होता है तो भी हमें लगता है कि हम किसी की आवाज सुन रहे हैं। उसके क्या क्या कोज हो सकते हैं हेल्यूजिनेशन के? तो इंटेंस इमोशन, सजेशन, डिसऑर्डर ऑफ सेंसरी ऑर्गन, देन सेंसरी डिप्राइवेशन, मतलब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन के वो होते हैं वो डिप्राइव हो जाते हैं, मीन्स हम किसी चीज को सुन नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं। देन डिसऑर्डर ऑफ सीएनएस मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर हो सकते हैं, एपिलेप्सी एंड साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इस चीजों में हेल्यूजिनेशन देखने को मिलता है। देन वी ऑलरेडी नो वी हैव 5 सेंसेस, तो उसके हिसाब से हमारे उसके टाइप्स है, हेल्यूजिनेशन के अलग अलग टाइप्स है। दैट इज ऑडिटरी हेल्यूजिनेशन मीन्स वॉइस, साउंड और नॉइज इज ए फॉर्म ऑफ हेल्यूजिनेशन दैट इन्वॉल्व परसीविंग साउंड विदाउट ऑडिटरी स्टिमुलस। कोई बोल नहीं रहा होता है, कुछ आवाज नहीं आ रही थी, पर वो हमें परसीव होता है कि हमें कुछ सुनाई दे रहा है। वो किस चीजों में देखने को मिलता है? साइकोसिस में, राइट। इट इज 3 टाइप्स: एलिमेंट्री, पार्शली ऑर्गेनाइज्ड एंड कंप्लीटली ऑर्गेनाइज्ड। एलिमेंट्री मीन्स नॉइजेज और बेल्स का हमें आवाज सुनाई देता है। पार्शली ऑर्गेनाइज मीन्स कुछ म्यूजिक सुनाई देता है, राइट। एंड कंप्लीटली ऑर्गेनाइज मीन्स वो स्किज़ोफ्रेनिया में परसिक्यूटरी होता है, मीन्स कोई हमें कमांड कर रहा है कि अब तुम अपने आप को मारो, टू किल अवर सेल्फ, राइट। तो समझ में आया? ऑडिटरी हेल्यूजिनेशन, कोई चीज नहीं होती है तो भी हमें सुनाई देती है, हम उसको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी हेल्यूजिनेशन। देन विजुअल हेल्यूजिनेशन, कोई चीज हमें दिखाई देती है पर वो वहाँ प्रेजेंट नहीं होती है। देन व्हाट इज ऑल्फैक्टरी हेल्यूजिनेशन? वी कैन स्मेल द थिंग्स बट वो प्रेजेंट नहीं होती है। द मोस्ट कॉमन ऑर्डर्स आर अनप्लीजेंट स्मेल्स। हमें मोस्ट कॉमन कौन सी स्मेल्स जो होती नहीं है पर हम स्मेल कर सकते हैं? दैट इज रोटिंग फ्लेश, वॉमिट, यूरिन, फीसिस एंड स्मोक एक्सेट्रा। देन व्हाट इज गस्टेटरी हेल्यूजिनेशन? इज द परसेप्शन ऑफ टेस्ट विदाउट ए स्टिमुलस। हमें कुछ चीज टेस्ट होती है पर वो प्रेजेंट नहीं होती है, वो किस चीज में देखने को मिलता है? दैट इज डिप्रेशन। देन व्हाट इज टैक्टाइल हेल्यूजिनेशन? इज द हेल्यूजिनेशन ऑफ टच। 3 टाइप्स के होते हैं: सुपरफिशियल, काइनेस्थेटिक एंड विसरल। सुपरफिशियल मीन्स हमको कुछ टच कर रहा है। देन काइनेस्थेटिक मीन्स हमारे बॉडी पार्ट्स हिल रहे हैं। देन विसरल मीन्स हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है, स्टमक, लीवर, उसमें कुछ ज्यादा सीवियर पेन हो रहा है, हम ऐसा परसीव करते हैं। देन व्हाट इज फॉर्मिकेशन? इट इज अ टाइप ऑफ टैक्टाइल हेल्यूजिनेशन, बट हमारी स्किन के अंडर में कुछ इंसेक्ट मीन्स कुछ कीड़ी मकोड़े क्राउल कर रहे होते हैं, ऐसा हमको फील होता है। बट वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? कि हम ज्यादा कोकेन यूज करते हैं, उसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है। देन सोमेटिक हेल्यूजिनेशन, what is somatic hallucination? Is the false sensation of things occurring, moving or through the body। हमारी बॉडी में कुछ मूव कर रहा है। मोस्ट ऑफन विसरल इन ओरिजिन मीन्स हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोमेटिक हेल्यूसिनेशन। देन डिसऑर्डर ऑफ थॉट, इन देयर इज अ 4 टाइप: पोजेशन, स्ट्रीम, कंटेंट एंड फॉर्म। पोजेशन मीन्स कैसा सोर्स कैसा है हमारा थॉट का, मीन्स सोर्स ऑफ वाटर, जैसे नदी है, देन सी है, देन बॉटल में कोई पानी है, देन बाल्टी में पानी है, तो हम उसको सोर्स ऑफ वाटर बोल सकते हैं। देन स्ट्रीम हमारे थॉट का फ्लो कैसा है, उसको हम स्ट्रीम बोल सकते हैं। देन कंटेंट हमारे थॉट का कंटेंट कैसा है, मतलब कितना पानी है, राइट, कितना कंटेंट में पानी है। देन फॉर्म कैसा है, मीन्स लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है। तो ये सिर्फ एग्जांपल है, जैसे सोर्स ऑफ वाटर, फ्लो ऑफ रिवर, वाटर और मॉल, लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, ये सब सिर्फ एग्जांपल दिए हैं कि आपको थॉट को कैसे अंडरस्टैंड करना है, राइट। So we will see one by one abnormalities of possession of thought, abnormalities in the stream of thought, abnormalities in the content of thought, and abnormalities of form of thought. So firstly we will see the abnormalities of possession of thought. जैसे obsession means हम
किसी चीज को हमारे माइंड में रजिस्ट करते हैं एंटर करने से, बट ये ऑब्सेशन में क्या होता है कि हमारे माइंड में हम रजिस्टर करने के बाद भी ये चीजें एंटर होती है, जैसे कुछ आइडियाज है, कुछ इमेजेस है, कुछ फीलिंग है, कुछ विशेष है, वो हमारे माइंड में एंटर करती रहती है हम रजिस्टर करने के बाद भी। वो हम चाहते नहीं है कि हम एंटर हो, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है, और वी कैन रिकॉग्नाइज इट एज सेंसलेस एंड इरेशनल, मीन्स कोई कारण बिना वो हमारे माइंड में एंटर होती है। और ऑब्सेशन के बाद क्या होता है, हम उसे कम आउट करने के लिए एक्ट करते हैं कोई भी, मीन्स for example, we can frequently hand washing if there is some small dust is there. Then we can check the lock, or we can check the light, we can check the gas, or etc. So dirt, contamination, cleaning, orderliness means किसी चीज को हम बार बार ऑर्डर में रखते हैं, then doubts करते हैं, checking करते हैं, counting करते हैं, right? So it is common optional content. Then thought alignation means हमारे thought का arrangement कैसा है, right? So इसमें तीन चीजें हैं, thought insertion, thought withdrawal, thought broadcasting and dysmorphophobia. What is thought insertion? Someone is thinking that हमारे माइंड में कोई अपने थॉट इंसर्ट कर रहा है, हम उसको क्या बोलते हैं, थॉट इंसर्शन. व्हाट इज थॉट विड्रॉल? हमारे माइंड में से कोई थॉट चुरा रहा है, राइट, which is taken out by outside forces, so we can call it as thought withdrawal. What is thought broadcasting? Then someone is hearing our thoughts and it is broadcast over the air or radio, means हमारे thoughts सारी जगह पे फैल रहे हैं, क्या हम उसको क्या बोलते हैं, थॉट ब्रॉडकास्टिंग. देन व्हाट इज डिसमॉर्फोफोबिया? पर्सन सोचता है कि मेरा कोई बॉडी पार्ट एबनॉर्मल है या डिफॉर्म है या इम्परफेक्ट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर. वी कैन कॉल इट एज बॉडी डिसमॉर्फिक डिसऑर्डर. हम आगे की टर्मिनोलॉजीज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. आई होप सो यू विल अंडरस्टैंड. देन थैंक यू एवरीवन.